Dr. Farooq. I am PhD in pharmacology from US and currently teaching as assistant professor in School of Health Sciences. My subject will be Pharmacology 1 and its code is SHS 302. और ये 2 क्रेडिट आर्क है और इसमें हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली फार्माकोलॉजी को स्टडी करेंगे. व्हाट इज फार्माकोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स ब्रांचेस एंड व्हाट इज रोल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स and how we can define pharmacokinetics and pharmacokinetics and pharmacodynamics. We will study receptors, their types, and mechanism of receptors, autonomic nervous system, and cardiovascular system. That will contain antihypertensive drugs and treatment of heart failure and cardiac arrhythmia, and also we will study anti-inflammatory drugs that will be called NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and we will also study anti-allergic drugs. तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट जो है एक सिलेबस होगा जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. हाँ जी, तो बता सकता है व्हाट इज फार्माकोलॉजी? रिलेटेड टू मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन. आप ना 1 by 1 हैंड रेज कीजिएगा ताकि आपकी बात क्लियर हो सके. दोबारा बताइएगा. जी लास्ट जी हिफ्जा नदीम आप बताइएगा. फार्मा मींस रिलेटेड टू मेडिसिन और बायोलॉजी. जी हिफ्जा नहीं बोल पा रही तो आर्या अशरफ आप बता दें या सनम रफीक, कोई एक बच्चा बता दो. कोई सर? सर हम बेसिकली फार्मा में स्टडी करते हैं मेडिसिन के रिलेट के. अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके यूजेस क्या होंगे. अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसके इफेक्ट्स को, उसके यूजेस को जितना भी हम ओवरऑल फार्मा में स्टडी करते हैं. ठीक है जी. कोई और बच्चा? जी सर. और सर इसमें सर फार्मा की मतलब कि मेडिसिन्स मतलब कि उनके फॉर्मूलाज क्या हैं और किस मतलब कि उसका यूज क्या है और हमने ये बेनिफिट्स मतलब कि इसमें पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी में. शाबाश जी. कोई और बच्चा? केमिकल कंपोजिशन, मेडिसिन Yes. और जी समन जावेद आप बताना चाह रही हैं? जी सर, इसमें हम वो देखेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक डिजीज को किस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं स्पेसिफिकली. ठीक है, शाबाश. ये बच्चों बेसिकली फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we will deal with the drugs, how they are absorbed, how they are distributed in the body, how their metabolism occurs in the body, and by which way they are eliminated from the body. And also, what is the role of receptors, how receptor will act. And when a drug binds with the receptor, how much biochemical changes or physiological changes that will occur in the receptor. उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी. ठीक है. We can define in this way that pharmacology is a branch of science in which we will study interaction of drug with the receptors. When a drug binds with the receptor, there is formation of signals. And these signals will be passed on toward the enzymes like we can say adenylate cyclase enzyme and phospholipase C enzyme
that will cause production of a secondary messenger. ठीक है, इसमें बेसिकली होगा क्या हमारे पास, जब भी रिसेप्टर के साथ कोई ड्रग आके बाइंड करेगी, रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड व्हेन ए रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हमारे पास देयर विल बी जनरेशन ऑफ सिग्नल्स, and these signals will be transduced to the G protein, and then these G protein will shift its signals toward the enzyme, and enzyme will cause generation of secondary messenger. Secondary messenger may be cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate, and IP3 and DHE. What is the IP3? It is the inositol triphosphate. And what is DHE? The diacyl glycerol. All these will cause change in the all these secondary messengers will cause change in the physiology of the cell. Cell में जो भी change produce होगी, that will occur due to the presence of किसकी वजह से होगी, presence of receptors. Receptors may be extracellular and receptors may be intracellular. Receptor sometime सेल की outer surface पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और sometime these receptors will be present inside the cell. For example, nucleus के अंदर भी receptor हो सकते हैं. जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की या एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर्स की, तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, किसकी एग्जांपल आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन की एग्जांपल आ जाती है, दैट कंटेन ऑन इट्स सरफेस द रिसेप्टर्स. आपने देखा होगा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह की प्रोटीन होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है. जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी दैट मे बी कॉल्ड रिसेप्टर. ठीक है, उसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं. जी सनम, एनी क्वेश्चन? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या ओवरऑल मतलब कैसे ही हमें बता रहे हैं? शेयर कर देता हूँ आपके साथ, फिर आगे मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू. मैं ओपन करता हूँ इसको, अगर आप विलिंग हैं तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी होगा इसमें. एक मिनट वेट कीजिएगा. जी शेयर हो गया आपसे स्क्रीन? यस सर. तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक एस्पेक्ट होता है वो किसका होता है, रिसेप्टर्स का होता है. रिसेप्टर जो है वो बेसिकली डील किसको कर रहे हैं, फार्माकोडायनामिक्स के साथ. हमारे पास टू ब्रांचेस हैं, एक हम फार्माकोकाइनेटिक्स कह रहे हैं और एक फार्माकोडायनामिक्स कह रहे हैं. जब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, इट डील्स विद अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. And when we talk about the pharmacodynamics, it will deal with the receptors. उसमें receptors आ जाते हैं हमारे पास. बच्चों समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं. जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आपके माइंड? सर समझ आ रही है. चीज कंफ्यूजिंग हो, कुछ समझ में ना आ रही हो तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जी बच्चे, अब हम थोड़ा सा लेक्चर के देख लेते हैं कि लेक्चर में क्या सिलसिलाकार है. बच्चे हमारे पास सबसे पहले फार्माकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं.
Pharmacology consists of two words. One is called pharmakon and others is called logos. Pharmakon means drug and logos means science. We can see that it is science of drug. It deals with the study of desirable and undesirable effects. It means desirable effects are those which we require. For example, a person has a fever. We want to subside this fever, we give it Panadol or paracetamol. That is a desirable effect. But on the other hand, there is undesirable effects which we don't require. That include the side effects or adverse effects. For example, headache है, GAD disturbance है, डायरिया है, और उसके अलावा किसी को अनीमिया हो जाता है. Their effects are undesirable. We don't want these effects. Pharmacology can also be defined as scientific study of origin, nature, chemistry, effects and uses of drugs. ठीक है? Scientific study है जिसमें हम देखते हैं ड्रग ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, प्लांट से हुई है, एनिमल से हुई है, ठीक है, या इसका कुछ सिंथेटिक सोर्स है. वी आर प्रिपेयरिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. व्हाट इज नेचर ऑफ ड्रग? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है. व्हाट इज केमिस्ट्री ऑफ ड्रग? केमिस्ट्री मीन व्हिच फॉर्मुलेशन इज मेड अप ऑफ ड्रग. कौन सी फॉर्मुलेशन है, इसकी एलिफेटिक रिंग है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, या इसकी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है. इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं इसके, और यूजेस क्या है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. On the other hand, it deals with how drugs interact with the biological system to affect the function. ठीक है, कि ये डील कैसे कर रही है, ड्रग कैसे डील कर रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ. बॉडी का जो सिस्टम है that will be called biological system. It can also be defined as a branch of knowledge that has to do with the chemicals that have biological effect. ऐसे chemicals जो कि biological system के effect को change करे या उनको effect करे, उसको भी हम pharmacology कह सकते हैं. ठीक है. Pharmacology can be defined as the study of substances that interact with living systems. ऐसी स्टडी है सब्सटेंसेस की जो कि इंटरेक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम के साथ, बॉडी के साथ. That may be animal, that may be human being through chemical processes. ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस होगा जिसके थ्रू इनका इंटरेक्शन होता है. Especially by binding to regulatory molecules. कैसे इंटरेक्शन होता है? By binding to the regulatory molecules. ये regulatory molecules क्या होंगे बच्चों? किसी का माइंड कुछ काम कर रहा है? What are regulatory molecules? Regulatory molecules are basically receptors जिनके साथ ड्रग बाइंड करती है. बच्चे बोले जी. सनम सर, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स तो वो होते हैं ना जो मतलब कि एज अ एंजाइम मतलब कि हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. मतलब कि जब मॉलिक्यूल की एक मतलब कि एक्टिविटी इंक्रीज हुई होती है तो हम इसे सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स तो वो होते हैं ना जो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं मतलब कि एंजाइम की. नहीं, आप उस सेंस में जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के सेंस में. मैं आपको फार्माकोलॉजी की सेंस में बता रहा हूं. जी सर. यहाँ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स सर. रिसेप्टर्स. ठीक है, ओके सर. receptors. When there is no attachment of drug with the receptor is inactive. Receptor has no activity. But when there is attachment of a receptor with the drug, there will be activity of the activation of the receptor. Okay, sir.
और सेकेंडली क्या होगा, एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, या तो बॉडी के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा या इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब दोबारा इसको जरा हम रीड करते हैं। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट with living systems through chemical processes, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting normal body process. जी बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? यस सर। एनी क्वेश्चन? जी बच्चे, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? कुछ चीज समझ आ रही है कि नहीं? सर आ रही है समझ। यस सर आ रही है समझ। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन हुई तो आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप आएंगे यूनिवर्सिटी, तो हम उसमें उसको दोबारा उसको रीड भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हुई उसको दोबारा डिस्कस भी कर सकते हैं। ये बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ गई है टर्मिनोलॉजी मेडिकल फार्माकोलॉजी। It is defined as science of substances used to prevent, diagnose and treat the disease. ऐसे substances जो कि prevent कर रहे हो डिजीज को रोक रहे हो, उसकी डायग्नोसिस हम कर सकते हैं डिजीज की, और डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मेडिकल फार्माकोलॉजी कहेंगे। Science of substances used to prevent, diagnose and treat disease. ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ गई है टॉक्सिकोलॉजी। What is toxicology? It is a branch of pharmacology which deals with the undesirable effect of chemicals on living systems, from individual cells to complex ecosystem. अब टॉक्सिकोलॉजी हमारे पास फार्माकोलॉजी से डिफरेंट है। फार्माकोलॉजी में तो हम अच्छे इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं, डिजायरेबल इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी स्टडी करते हैं। जबकि जब हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं, in this study we will study the toxins, the toxic chemicals which are dangerous to the body. ठीक है, अब कोई केमिकल ऐसा है जो कि बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड है, वो बॉडी के नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और डेथ काज कर सकता है। इसी तरह हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एक सब्सटेंस है that is also toxic to the body. अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल उसको अटेंशनली या अनअटेंशनली यूज कर ले, उससे हमारे पास बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसमें लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लंग्स पे इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ड्रग हम ज्यादा डोज में ले लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैराडोल इज रिक्वायर्ड ओनली 1 टेबलेट और 2 टेबलेट, अगर हम 10 टेबलेट्स एट ए टाइम ले लें, दैट कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स। जब हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे पार्सनस, he said that everything is toxic depending on the dose. हर चीज टॉक्सिक है, डिपेंड किस पर कर रहा है? डोज के ऊपर। If we are administering small quantity or less dose, then it will be not harmful to the body. But if we use excessive amount, that can be toxic. Water की अगर excessive amount ले ले, that can also produce toxic effects. डिस्प्रिन जो है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं हेडेक के लिए। अगर डिस्प्रिन ज्यादा यूज कर ले, बहुत ज्यादा यूज कर ले,
तो वो क्या करेगी, जीआईटी प्रॉब्लम काज कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर काज कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज टॉक्सिक डिपेंडिंग ऑन द डोज। और ये क्या करेगा हमारे पास, ये जो इफेक्ट होंगे केमिकल्स के, ये लिविंग सिस्टम में भी होंगे। कहां से कहां तक, एक सेल से लेकर कंप्लेक्स इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं और एनिमल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं टॉक्सिन। डिफरेंट हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स, तो इंसेक्ट्स को किल करती है। और इसी तरह जो हमारे पास वो प्लांट्स जिनके ऊपर वो स्प्रे की जाती हैं, उनको भी डैमेज कर सकती हैं। जो ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं उन्हीं प्लांट्स को, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, तो वो उनको भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं उन इंसेक्टिसाइड्स के। जी बच्चों, ओके है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। गए? जी बच्चों, समझ आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। सर आ रही है। सर आ रही है। चलो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, ओके? यस सर। कब तुम गए और पढ़ाएं कि बस करें? बस सर ठीक है। तुम्हें काफी है? सर अभी हेड ड्रॉप होना है तो और स्टूडेंट्स ने आना है, ठीक है, फिर दोबारा ही पढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए आपको पढ़ाया ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो सब्जेक्ट का, ये ना हो आप आए भी और बगैर लर्निंग के चले जाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं। जी, वीडियो ऑफ कर दें, ओके? यस सर। चलिए ठीक है। मुझे कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।